students, and a warm welcome to Super Grads. And today we shall be talking about another important form filling process. Yes, SNAP 2024 का जो form filling process है वो आज से start हो चुका है. The registration has begun from today, that is 5th of August, and the last date to fill the form is 22nd of November. सो मेक श्योर कि आप जितना जल्दी अपना स्नैप का फॉर्म फिल कर सके प्लीज कर लीजिए. नाउ हियर वन गुड थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज कि आप ये एग्जाम 3 बार दे सकते हो. इस एग्जाम के आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो और तीनों अटेम्प्ट्स की जो डेट है द विंडो इज नॉट दैट लेंदी जैसे एनमैट का होता है. दिसंबर में ही तीनों डेट्स हैं. इनफैक्ट द डेट्स आर आल्सो देयर ऑन द वेबसाइट. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट स्नैप फॉर्म फिलिंग प्लस I will be also telling you कि आपको कौन से Symbiosis institutes fill करने चाहिए. So make sure you watch this video till the end because we'll be discussing each and everything in detail. So form भरने से पहले please ensure कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लें. What important things you need to keep with you handy so that you do not make any mistake during the form filling. So without wasting any more time, let's get started. So very first, you need to go on this particular website, that is www.snaptest.origin. Here you can see Symbiosis MBA via Snap 2024 applications are now open. Here they have given the steps to apply कि आपको कैसे apply करना है. Now let us understand the overview of the whole Snap exam as well. कि Snap exam का क्या overview है ये समझ लेते हैं. So this is a CPT based exam as you all know. Now here you need to first register for the SNAP test. So बहुत crucial step है कि जब तक आप SNAP के टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं करोगे तब उसके बाद ही आप जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हो और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हो. पे द रजिस्ट्रेशन फी फॉर स्नैप. सो द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू पे द रजिस्ट्रेशन फी फॉर स्नैप. Register for the choice of programs. Now it is up to you. There are 17 Symbiosis institutes in India and there are 27 MBA programs in these 17 Symbiosis institutes. So now it's up to you कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है. बट येस जो स्नैप टेस्ट आप दोगे उसका रजिस्ट्रेशन फी इज डिफरेंट. इट इज 2250. बट जो आप इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो यू नीड टू पे 1000 per program that you select in the form. Now here pay the registration fee separately for each program. So it is mentioned कि आपको program जो भी आप choose करते हो उसका registration fee आपको separately pay करना है. If shortlisted for a program, then candidate would need to participate in further admission process, that is group exercise and personal interview. So पहले आप स्नैप का एग्जाम देते हो उसके बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज के लिए आपको कॉल आता है if you clear the cutoff and then happens your personal interview. So here the MBA programs and all the institutes are mentioned. So now if you're not aware about the MBA programs of Symbiosis, I would suggest कि एक बार आज आप पूरा वेबसाइट अच्छे से गो थ्रू कर लो. इनफैक्ट दे हैव आल्सो गिवन द लिंक्स टू ईच एंड एवरी कॉलेज. सो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे फॉर SIBM पुणे, सो यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पेज एंड यू कैन गो थ्रू अबाउट द कॉलेज, द प्रोग्राम्स दैट आर ऑफर्ड और उनके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो. So here the overview you can see. Next let us look at the program eligibility as well. So if you see the eligibility, you might be aware यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स है टिल SIBM पुणे, SIBM बेंगलुरु, इनका एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन with minimum of 50% marks or equivalent degree, equivalent grade, 45% marks for scheduled caste, scheduled tribes at graduation. So here the eligibility criteria for different programs is given. So as you all know, a graduate degree is a must if you're going ahead with any management entrance exam. This criteria we are aware of. So यहाँ पे सारे programs का जो criteria है वो mentioned है. So you can go through it once. Next, how to register. So the steps are given for the registration. Here the dates have been mentioned कि आपका exam जो है SNAP का जो 3 attempts हैं वो कौन से date को होंगे. So the very first attempt you have on December 8th.
दैट इज संडे, सो यू डोंट नीड टू वरी, जो सारे आपके अटेम्प्ट्स हैं स्नैप के वो कैट के बाद ही होंगे. नेक्स्ट इज December 15th 2024 and the last attempt that you'll have is December 21 2024. Next, if you see, timings will be communicated to the candidates via their admit card. So timings अभी यहाँ नहीं बताए हैं. जब आपका admit card out होगा, so the timings would be mentioned over there. Next, if you look over here, a candidate can appear up to 3 tests. So you can write the SNAP exam 3 times, as we have seen over here. The higher score will be considered for the final calculation. So तीनों में से जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम का स्कोर सबसे ज्यादा होगा, जिस भी सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट के लिए आप अभी अप्लाई कर रहे हो, वो लोग वही स्कोर कंसिडर करेंगे. सो हियर यू कैन रजिस्टर फॉर द SNAP exam and the institutes, the website we are aware of, और जो registration आपका है आप November 22nd तक कर सकते हो. No changes shall be permanent after the registration under any circumstances. So now here you need to understand one thing कि जो भी details आप fill कर रहे हो, make sure you fill it very carefully. Keep all your documents with you when you're filling the form. Next, ensure that the information you have filled is accurate. SNAP test registration fee and program registration fee. Again, I am saying कि SNAP का सिर्फ फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा. इसी सेम फॉर्म में ही आप अप्लाई करोगे, बट यू नीड टू पे सेपरेट registration charges for the same. Next, you need to upload your latest scanned color passport size photograph at the time of online registration for SNAP. So one important thing is कि आपका photograph जो है वो यहाँ पे आपको upload करना है. It should be a colored photograph and it should be not a older one. It should be recent one only. As I've mentioned in previous form filling videos as well, कि अगर आपके पास कोई photograph नहीं है तो आप प्लीज क्लिक करवा लीजिए एक recent passport size photograph with the white background and try to convert it in a minimum size, scan it in a minimum size, ताकि आप सारे फॉर्म्स में आगे भी उसको यूज कर सको. नेक्स्ट, पेमेंट आप कैसे करोगे? 3 वे हैं टू पे. वन इज BillDesk, another is EaseBus payment gateway that they have, and the third option they have is demand draft. Demand draft now is up to you. I would not suggest to go ahead with the DD option. Everybody is using online debit cards, credit cards and payment gateways, so I would suggest कि उसी के through करो. But अगर आपको DD करना भी है, so they have mentioned the details for the DD as well कि आप कैसे कर सकते हो, आपको कहाँ कौन से एड्रेस पे देना है. Everything is mentioned over here. Okay, so this is what it is regarding the DD that they have mentioned. Again, यहाँ पे प्रोग्राम्स के बारे में फिर से दिया हुआ है, आप एक बार उसका ओवरव्यू ले सकते हो. ओवर हियर इंपॉर्टेंट डेट्स हम एक बार देख लेते हैं. नाउ हियर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट विल क्लोज ऑन November 22nd 2024. एडमिट कार्ड आपका कब होगा? तो आपका जो एग्जाम है वो 8 दिसंबर को, 15 दिसंबर को और 21 दिसंबर को है. तो एडमिट कार्ड आपको हर अटेम्प्ट के लिए पहले ही मिलेगा. सो for 8 December, that is for the first test, you will get the admit card download availability from December 2nd. Next test के लिए which is on December 15, उसका admit card डाउनलोड होगा December 9 से. और जो आपका थर्ड है December 21, उसके लिए एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो December 15 से डाउनलोड करना आप स्टार्ट करोगे. अनाउंसमेंट कब होगा रिजल्ट का? दे हैव आल्सो मेंशन्ड दैट डेट. तो January 8 को the results will be announced. Next, timings again, they have not mentioned yet, so they will be communicating that. Now let us quickly move ahead with the form filling process. So here, when you go on this particular website, so आपको यहाँ click करना है apply for Symbiosis MBA. Here you would see this particular thing. Here you would see this particular thing. क्योंकि अभी तक हमने registration process start नहीं किया है, तो हम don't have an account yet. register पे click करेंगे. जब आप register पे click करोगे, so this terms and conditions page will open, जो आपको carefully read करना है. यहाँ पे mentioned है lot of things.
फोटोग्राफ से रिलेटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल इज गिवन कि आपका फोटोग्राफ जो है वो डॉट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या जीआईएफ फॉर्मेट में ही हो सकता है. नेक्स्ट, इट शुड बी बिटवीन 10 KB टू 5 MB. उससे ज्यादा का नहीं एक्सेप्टेबल है. उससे ज्यादा का तो इनफैक्ट फॉर्म ही रिजेक्ट कर देगा. सो इट शुड बी इन दिस पर्टिकुलर साइज ओनली. नेक्स्ट, हियर इट्स गिवन अबाउट द रजिस्ट्रेशन के सारे स्टेप्स दिए हुए हैं. सो ये आप एक बार केयरफुली रीड कर लेना. अभी ऑल्दो हम पूरा फॉर्म फिल करेंगे, बट दिस आर द स्टेप्स दैट यू कैन रीड वंस. नाउ हियर दे हैव मेंशन्ड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितनी जल्दी आप स्नैप के लिए और स्नैप एग्जाम के लिए और इंस्टीट्यूट्स के लिए जितना जल्दी आप रजिस्टर कर लोगे, उतने चांसेस हैं कि यू विल गेट द टेस्ट सिटी सेंटर ऑफ योर चॉइस. क्योंकि ये ऐसा होता है कई बार कि आप अगर लेट कर दोगे तो यू माइट बी नॉट गेटिंग द सिटी प्रेफरेंस जहाँ पे आपको एग्जाम देना है ऑफ योर चॉइस. सो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप स्नैप एग्जाम का रजिस्ट्रेशन तो आप कंप्लीट कर लो. बाकी इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन डू दैट पेमेंट लेटर ऑल्सो. नेक्स्ट, दे हैव गिवन रिजर्व्ड कैटेगरी के रिगार्डिंग फ्यू थिंग्स. नाउ यहाँ पे एक चीज है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी, जनरल को दे मेंशन एज ओपन कैटेगरी. जनरल कैटेगरी के लिए देयर इज अ रिजर्वेशन. सॉरी, जनरल कैटेगरी है, देन यू हैव शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, डिफरेंटली एबल्ड एंड चिल्ड्रन और वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल. सो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन नहीं है. So here you only have these many categories, and they have also mentioned कि कितना % reservation है. For SC it's 15, for ST it's 7.5, for differently abled it's 3%. Children wards of defense personnel ये सिर्फ इन्हीं colleges के लिए है, that is SIIB, SIDTM, SICSR, SCIT. तो इनके लिए, इन्हीं colleges के लिए है ये defense personnel वाला जो reservation है, it is 5%. Here they have mentioned all the details regarding the defense personnel, so you can go through this also once. Differently abled के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि types of disabilities जो यहाँ पे covered हैं, so ये भी आप एक बार go through कर लीजिए if you fall under this category. Then नागपुर domicile. Now here if you are applying for SIBM नागपुर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो एक एडवांटेज है कि 25% of the seats are reserved for the नागपुर domicile. एज इन अगर आप नागपुर से ही बिलोंग करते हो तो आपके पास ये एडवांटेज है. सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दैट SIBM नागपुर, सो यू कैन रीड आउट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन फॉर दैट. पेमेंट के रिगार्डिंग अगेन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. एज आई मेंशन 3 वेज हैं. डिमांड ड्राफ्ट आपको कहाँ भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है. सो मेक श्योर वो डिटेल आप केयरफुली फिल कर लो. ओके, सो दैट इज इट. A brief with the terms and conditions. So this is a long detailed terms and conditions ka form before the form filling. So make sure you read out that. Now here you need to click on this. Clicking here confirms you've read and understood the SNAP 2024 bulletin. So यहाँ पे आपको click करना है and then you need to click on this icon that is continue. यहाँ जब आप click करोगे so आपका जो SNAP का form filling है वो स्टार्ट हो जाएगा. नाउ हियर वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि ये चेकलिस्ट आप एक बार देख लो हर फॉर्म फिलिंग से पहले. जैसे मैं आपको बताती हूँ कि चेकलिस्ट कितनी जरूरी है, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 10th का मार्कशीट आप अपने साथ रखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ईयर हम भूल जाते हैं कि हमने 10th कौन से ईयर में पास किया था, 12th कौन से ईयर में पास किया था. मार्क्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कन्वर्ट करने पड़ेंगे. सो मेक श्योर 10th 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो. जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं लाइक SC ST या यहाँ पे जो भी कैटेगरीज मेंशन है फॉर स्नैप, डिफरेंटली एबल्ड एक कैटेगरी है, और अगर आप डिफेंस पर्सनल से बिलोंग करते हो, सो मेक श्योर यू हैव दैट सर्टिफिकेट एज वेल. नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा था कि वहां पे अगर हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे आफ्टर reading the terms and conditions, so you will land up to this particular page. Here of course you need to enter your name, over here. Then you need to enter your date of birth over here, and then अपना mobile number,
जो आपको एंटर करना है वो आप यहाँ एंटर करोगे। ईमेल आईडी मेक श्योर आप करेक्ट ईमेल आईडी एंटर करो, बिकॉज जो भी कम्युनिकेशन होगा फ्यूचर में भी आपके पास अगर इंस्टीट्यूट से भी कुछ कम्युनिकेशन आता है विद रिगार्ड्स टू द कॉल्स और एनीथिंग, इट विल कम ऑन दिस ईमेल आईडी। सो मेक श्योर कि आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर सब करेक्ट हो। नेक्स्ट, आप एप्लीकेबल हो अदर देन सिम स्पेसिफिक कैटेगरी। अगर आपका कोई कैटेगरी है सो यू नीड टू सिलेक्ट फ्रॉम दिस। सो यहाँ पे दिया हुआ है ओपन इज फॉर जनरल एंड फॉर ओबीसी। देन शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, डिफरेंटली एबल्ड है, कश्मीरी माइग्रेंट्स है, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, नॉन माइग्रेंट्स लिविंग इन कश्मीर फैमिली। So if you're a Kashmiri migrant also, so there is a category for you. OBC के लिए as I mentioned कोई कैटेगरी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, आप चूज कर सकते हो अपना स्नैप एग्जाम। आपको अगर तीनों अटेम्प्ट देने हैं तो आप तीनों पे क्लिक करो, अगर आपको एक देना है तो आप एक पे क्लिक करो। सो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आप आगे सिटी भी चूज कर पाओगे। सो हियर आई हैव क्लिक्ड ऑन ऑल थ्री and now I have to choose the city as well. Again, another important information over here is your nationality, कि आप कौन से nationality को belong करते हो, आप NRI candidate हो या नहीं। अगर हो तो then it will ask you maybe a question as well यहाँ पे कि if you belong to a NRI category, so do you wish to take admission under NRI category or not? So you need to select the option accordingly. Then आपको choose करना है कि आप कितने अटेम्प्ट देने वाले हो, तो यहाँ आप चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ एक अटेम्प्ट भी चूज करते हो तो लास्ट में फॉर्म फिलिंग में ऑटोमेटिकली वो आपको बाकी के 2 अटेम्प्ट्स के लिए भी पूछेगा। सो नो वरीज ओवर हियर, एटलीस्ट आप एक अटेम्प्ट के लिए तो अभी फिल कर दो, रजिस्टर कर दो, आई वुड सजेस्ट। देन हियर यू नीड टू ऑफ कोर्स सिलेक्ट द सिटी, कि आपका प्रेफरेंस सिटी क्या होगा जहां आप एग्जाम दोगे। ओके, यहाँ अगर आपका वो सिटी यहाँ पे नहीं दिया है तो जो भी नियरेस्ट सिटी आपके टाउन से, आपके सिटी से जो भी पास में है, आप वो चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, सपोज आप सिलेक्टेड भोपाल मध्य प्रदेश। सो अगर आपको तीनों एग्जाम सेम जगह देने हैं, भोपाल मध्य प्रदेश या इंदौर मुंबई whatever, you can select it accordingly and it will, if it's showing available, so then that means कि the slot or the this thing is available for you and you can give the exam in that particular city. Next you need to do is you need to upload your current passport size photo, and as I mentioned वो 10 KB से 5 MB के बीच में ही होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, एंड मेक श्योर वो वाइट बैकग्राउंड में ही क्लिक हो। और वही फोटोग्राफ आपको एग्जाम के टाइम पे भी कैरी करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। सो प्लीज इंश्योर वो सेम फोटोग्राफ कि आपके पास एक्स्ट्रा कॉपीज भी हो, ताकि आप लेटर ड्यूरिंग एग्जाम उसको यूज कर सको। नेक्स्ट, you need to click on this कि I have verified my name, date of birth, category, photograph, test date and test cities. I'm aware that once saved these details can not be changed. अब जो भी changes हैं यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं देगा आपको। जैसे कैट के एग्जाम में प्रीव्यू का ऑप्शन था, वन थिंग ओवर हियर इज कि प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं है। सो बिफोर क्लिकिंग ऑन दिस मेक श्योर कि एक बार आप पूरा फॉर्म गो थ्रू कर लो। देन यू नीड टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू एंड देन वी मूव अहेड। एंड देन आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें ये मैसेज दिया होगा, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन ओके ओवर हियर। नेक्स्ट, आपके पास एक OTP आएगा जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है। सो मेक श्योर आप अपना ही मोबाइल नंबर दो, और वहां पे आपके पास एक OTP आएगा। यू नीड टू क्लिक ऑन सबमिट। देन सबमिट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका स्नैप का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। सो दिस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स विल ओपन wherein it would say कि thank you for your registration। स्नैप ID आएगा आपके पास, और जो भी ईमेल से आपने रजिस्टर किया है that will appear, and in your email as well you will get the snap ID and the password। पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है so you have the option to change। And then now here one thing over here is click here to make the payment or pay later। तो of course we'll be clicking over here क्योंकि बिना स्नैप एग्जाम का फीस भरे आप आगे फॉर्म फिलिंग में नहीं बढ़ सकते हो। सो पहले आपको इंश्योर करना है कि एटलीस्ट आप
एक अटेम्प्ट के जो पैसे हैं वो तो भर दो, तभी आप आगे अपना फॉर्म फिलिंग कंटिन्यू कर पाओगे. विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू फॉर द फॉर्म फिलिंग और फिल द इंस्टीट्यूट्स का जो भी डिटेल्स हैं, जो जितने भी सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट्स में आपको अप्लाई करना है, आप उसके लिए उस स्टेप पे भी नहीं बढ़ पाओगे. तो पहले आपको जो है ये जो प्राइस है, सपोज आई हैव सिलेक्टेड 3 programs, so this amount will show to me if I click on pay now, and then my name will come here, the photograph will come, the snap id will appear, the name will appear here as well, and then category जिसमें मैंने अप्लाई किया है that, 3 payment options, bill desk, easebus and demand draft, 3 payment options भी आएंगे मेरे पास. Then here it's showing regarding each and every payment method that you choose. So suppose if I selected bill desk, यहाँ पे आपको अपना जो पूरा बिल है दिखाएगा. पेमेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, सो एक बार मेक श्योर आप वो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस भी रीड आउट कर लो. नेक्स्ट, इफ यू क्लिक ओवर हियर, you are now entering the payment gateway. So when I click over here, click here to continue, it will redirect me to the payment page. And then once I've made the payment, I'll receive this particular message. Thank you, your transaction was successful. You will get the receipt number as well, and make sure you get the same on your email as well. तो आपको email पे भी आएगा, तो please आप वो जो receipt है उसको save कर लेना in your phone and your laptop. Next, now we need to complete the remaining portion of the application, and individually हम जिस भी symbiosis के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हमें 1000 rupees और पे करने पड़ेंगे. So this was part 1 of the registration wherein we applied for the SNAP exam. Next we need to apply further जहाँ पे हमें education details और जो programs में हमें अप्लाई करना है that we need to go ahead with. So यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक here to continue पे. Once you click over here, automatically आपका नेम फेच हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर. नेक्स्ट, आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा, ईमेल आईडी जो आपने दिया है वो फेच हो जाएगा. Retype email ID again, this will also fetch automatically. Next, do you have a full-time work experience? So it is now, if you have, then you can click yes, और यहाँ पे आप months enter करोगे, और अगर नहीं है, so you can simply click on no. Next, educational details, very important again. So अपना 10th 12th का marksheet और graduation का marksheet जो भी है आप please अपने पास रखिए. 10th के marks आपको यहाँ पे enter करने हैं. Now यहाँ पे एक चीज है कि आपको परसेंट में ही एंटर करना है. सो इवन इफ आपके 10th के या 12th के मार्क्स CGPA में है, सो मेक श्योर आप उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो यूजिंग व्हाटएवर फॉर्मूला योर यूनिवर्सिटी हैज गिवन टू यू. नेक्स्ट, योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यू नीड टू एंटर. अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि अपीयर्ड फॉर बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स, प्रोफेशनल या डॉक्टरेट. तो अगर आप अभी भी अपना जो बैचलर्स डिग्री है वो परस्यू कर रहे हो, एज एन आप 3rd ईयर में हो, तो आपको इस पे क्लिक करना है. बट इफ योर बैचलर्स डिग्री इज डन, देन यू नीड टू क्लिक ऑन बैचलर्स डिग्री एज एन यू हैव कंप्लीटेड दैट डिग्री. सो देन यू विल बी क्लिकिंग ओवर हियर बैचलर्स डिग्री डन. ओके, एंड देन अगर आप डन पे क्लिक कर देते हो कि यू आर डन विथ योर बैचलर्स डिग्री, सो यू नीड टू ऑल्सो एंटर द परसेंटेज ऑफ यूजी डिग्री. तो जो भी आपका परसेंट है, आपकी जो डिग्री है, मार्कशीट है, आपको वहां से देख के अपना जो परसेंटेज है वो ऐड करना है. अगेन, अगर CGPA है, SGPA है, सो मेक श्योर यू कन्वर्ट इट एंड देन यू ऐड द परसेंटेज ओवर हियर. नेक्स्ट, यूजी एजुकेशन टाइप. लेकिन अगर आप यहाँ पे करोगे अपीयर्ड बैचलर्स डिग्री पे अगर आप क्लिक करते हो, देन इट वोंट आस्क योर परसेंटेज, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव नॉट रिसीव्ड योर फाइनल डिग्री और उसके मार्क्स आपने अभी तक रिसीव नहीं किए हैं, तो यहाँ आपसे परसेंट नहीं पूछेगा. नेक्स्ट, यूजी एजुकेशन टाइप कौन सा है आपका, एग्रीकल्चर हो, आर्ट्स हो. सो वेरी लिमिटेड ऑप्शंस आर हियर, और अगर आपको लग रहा है आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हो, and then it might ask you to fill it separately. Next, you need to select over here what is your degree. So degree आपकी कौन सी है, BCom है, अगर आपने मैनेजमेंट चूज किया है तो BCom है, BMS है, BBA है, और अगर नहीं दिया हुआ है आपका डिग्री यहाँ पे तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हो, एंड देन अदर्स पे क्लिक करके you can fill your degree name over here. So it will give you that option to fill it separately.
नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? अगेन यहाँ पे दिया है कि यूनिवर्सिटी अगर आउटसाइड इंडिया है तो आपको यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया चूज करना है, अदरवाइज हियर यू कैन सर्च योर यूनिवर्सिटी, एंड इफ इट्स नॉट गिवन, अगेन you need to click on others and you can enter the university name as well. Next, now comes the very important step कि आपको कौन से सिम्बायोसिस प्रोग्राम में आइडियली अप्लाई करना चाहिए. ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स और हर कॉलेज के एटलीस्ट आपके पास दो प्रोग्राम्स हैं. एज आई मेंशन इन द बिगनिंग, 17 इंस्टीट्यूट्स हैं सिम्बायोसिस के, जहाँ पे 27 प्रोग्राम्स हैं एमबीए के. तो ऑफ कोर्स हम सारे प्रोग्राम्स तो नहीं भरेंगे. नॉट दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपके माइंड में कुछ है कि there is a program in this particular symbiosis university जो I think I should apply to because of so and so reason, so you can apply. Otherwise I would definitely tell my suggestions कि आपको कौन से top 4 institutes के लिए register करना चाहिए. Next, ये भी आगे एक list है, तो my suggestion would be to go ahead with MBA SIBM Pune, जो main प्रोग्राम है, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट वी हैव, फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं. नेक्स्ट, MBA SCM HRD, अनदर इंपॉर्टेंट कॉलेज दैट यू शुड बी टारगेटिंग. देन SIIB. नाउ SIIB में एक कंडीशन है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आपसे वो पूछेगा ये सवाल मैंडेटरीली. सो दिस इज फॉर द वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स. नेक्स्ट प्रोग्राम that I would suggest is SIBM Nagpur. Now also यहाँ पे नागपुर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको फायदा होगा कि वो SIBM नागपुर में अप्लाई करें एंड SIBM बेंगलुरु. So this would be my recommendation as per the programs that I would suggest जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए. नागपुर वाला is only for the people who are from Nagpur, तो सिर्फ उनको ही सजेस्ट करूंगी मैं. अदरवाइज बेंगलुरु इज अ ग्रेट. SIBM पुणे के बाद, SCHMRD के बाद, SIIB पुणे के बाद, I think SIBM Pune, SIBM Bengaluru is the main college that you should be targeting for symbiosis. Next step comes is your address. हाँ, as I mentioned कि अगर आप SIIB select करते हो तो आपको अपना एजुकेशन स्पेशलाइजेशन बताना पड़ेगा. Then you need to also mention अपना work experience sector because यहाँ work experience mandatory है. Next, SIIB के लिए as we all know, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डिफेंस पर्सनल के लिए 5% रिजर्वेशन है. सो ये आप एक बार रीड कर सकते हो. Then you need to enter your address. Okay, so everything, every detail regarding your address, please make sure कि आप correct address यहाँ पे fill करो. नेक्स्ट ऑप्शन कम्स कि आपके पास ये आपको बताएगा कि स्नैप टेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं जो अवेलेबल हैं. सिटीज आपको बता देगा जो आपने स्टार्टिंग में चूज की थी. नेक्स्ट, सिम्बायोसिस दुबई एक प्रोग्राम है. सो इट इज आस्किंग दैट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर सिम्बायोसिस दुबई MBA प्रोग्राम. सो यस या नो आप क्लिक कर सकते हो, वट एवर योर प्रेफरेंस इज. आई वुड सजेस्ट क्लिक ऑन नो ओनली. Next, you need to upload. So the photograph is already uploaded, तो दोबारा हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है. Here now we will click on save and continue option. Save and continue पे जब आप क्लिक करोगे, then only the form will go ahead. Save and continue पे क्लिक करने के बाद now comes the payment of the institute. और अगर आपने इनिशियली सिर्फ एक ही टेस्ट अटेम्प्ट के लिए फी पे किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है दोबारा से अगर आपको अटेम्प्ट देना है या 3 अटेम्प्ट देने हैं आपको, तो आप बाकी के 2 अटेम्प्ट के लिए भी यहाँ पे कर सकते हो. बट एज आई सजेस्टेड, इनिशियली एटलीस्ट आप एक अटेम्प्ट के लिए तो फिल कर दो फॉर्म, सो दैट यू आर सिक्योर दैट वे. देन आप थोड़ा रीथिंक कर सकते हो जब तक आपके पास टाइम है टू फिल द फॉर्म, तब तक आप रीथिंक कर सकते हो कि आपको बाकी 2 अटेम्प्ट्स देने भी हैं या नहीं. बट देन दैट डिसीजन ऑल्सो यू नीड टू टेक क्विकली, बिकॉज आपको अगर अपने प्रेफरेंस का जो सिटी है अगर वो चाहिए तो आपको थोड़ा सा वो जो कॉल है जल्दी लेना पड़ेगा. नाउ हियर सिंस आई हैव सिलेक्टेड ओनली 3 प्रोग्राम्स, सो इट इज गिविंग मी 3000 रुपीज एज माई टोटल. मैंने सिर्फ 3 ही सिम्बायोसिस प्रोग्राम चूज किए थे ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग. सो दैट इज हाउ इट्स शोइंग मी. इट विल शो मी माई डिटेल्स फाइनली, मेरा नाम, ईमेल ID, कैटेगरी एंड डेट ऑफ बर्थ.
पेमेंट गेटवे आप चूज कर सकते हो अगेन। Here now it will show as I mentioned कि एक टेस्ट के लिए मैंने पे कर दिया, so it's showing me paid over here. So I've just paid for one test at the time of payment. Now it's showing me that if I want to pay for this also, I can click on this particular box and then I can pay for the remaining 2 tests as well. सो मैंने जैसे 15 दिसंबर का यहाँ पे चूज किया है, तो सिर्फ उसी का स्टेटस पेड है क्योंकि मैंने सिर्फ उसी के लिए पे किया है। अगर आप चाहते हो कि आप तीनों अटेम्प्ट दो तो एट दिस स्टेज ऑल्सो आप पे कर सकते हो बाकी के 2 अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट जो मेरे प्रोग्राम्स हैं, जो 3 प्रोग्राम्स मैंने चूज किए हैं, SIBM पुणे, SCHMRD पुणे, SIIB पुणे, इन तीनों का भी प्राइस मुझे दिखा रहा है नॉट पेड नॉट पेड नॉट पेड बिकॉज आई हैवंट पेड इट येट। सो अभी हम उसका पेमेंट करेंगे बिकॉज दिस पेज इज पर्टिकुलरली फॉर द पेमेंट ऑफ द रिमेनिंग अटेम्प्ट्स एंड फॉर द symbiosis programs. So here now again you need to click here to pay this option. Okay, so here we are done with the SNAP 2024 फॉर्म फिलिंग प्रोसेस एंड एज आई मेंशन कि जितना जल्दी हो सके आप अपना स्नैप का फॉर्म फिल कर लो सो दैट यू गेट द सिटी ऑफ योर चॉइस बिकॉज स्नैप एग्जाम इज अ इजी गोइंग एग्जाम। अगेन लेवल उतना टफ नहीं है कैट जितना, तो आई थिंक आप सभी वो एग्जाम दे सकते हो। 3 अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, सो अगेन अ फिनोमिनल exam I would suggest. And yes, if you want to stay connected with all the updates and you want to practice more questions on a daily basis with regards to CAT and other management exams, that you could follow our Telegram channel. You can also follow us on Instagram. You can also subscribe to the YouTube channel. So make sure कि आप please subscribe कर लो because बहुत सारे important updates अभी आने वाले हैं। बहुत सारे B school के forms भी अभी open होंगे in the coming time. So make sure you subscribe to the YouTube channel as well. And for more such updates, stay tuned to Supergrads.